افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر پاک فوج کا دندان شکن جواب، درجنوں پوسٹیں اور کیمپ تباہ، متعدد افغان طالبان اور خارجی ہلاک، افغان طالبان لاشیں اور ہتھیار چھوڑ کر فرار، پاکستان کا افغان طالبان کی درجنوں چیک پوسٹوں پر قبضہ، سب ضلعی پرچم لہرا دیا گیا، دہشت گردوں کے تربیتی مراکز اور پوسٹوں پر آگ اور تباہی کے مناظر، فتنہ الخوارج کے مرکز کھرچر فورٹ میں آگ کے شعلے، منوجبہ بٹالین ہیڈ کوارٹر اور دورانی کیمپ علیہ میٹ، مرامچہ سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ کو شدید نقصان، خرلاچی سیکٹر میں افغانی چیک پوسٹوں کی تباہی کی ویڈیو سامنے آ گئی، افغانین دوران میلہ اور ترکمان زئی کیمپس بھی تباہ کر دیے، کنڑ میں افغان پوسٹ اور جنڈوسر پوسٹ ملبے کا ڈھیر بن گئی، منوجبہ کیمپ 2 اور 3 میں درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، تباہ کی گئی چیک پوسٹوں سے خارجیوں کو لانچ کیا جاتا تھا، پاک فوج کی جانب سے شدید اور مؤثر جوابی کارروائی جاری، پاک فوج کا فضائی وسائل، آرٹلری، انفینٹری اور ڈرونز کا بھرپور استعمال، افغانستان کی پاکستان سے بار بار کارروائی روکنے کی درخواستیں۔ طالبان کا دورانی کیمپ 2 کامیاب سٹرائک سے مکمل تباہ، کیمپ میں موجود 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، طالبان کاغر نالی ہیڈ کوارٹر ملیہ میٹ، برابچہ میں افغان طالبان کی 2nd بٹالین ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، برابچہ میں خارجیوں اور فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو لانچ کیا جاتا تھا، کرم کے مخالف افغانستان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا، کارروائی میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ، بلوچستان میں بھی سرحد پار پاکستان کے حملے، متعدد خارجی ہلاک، کئی چیک پوسٹیں تباہ، دیوبند اور قلعہ عبداللہ میں افغانی پوسٹ تباہ، جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ کے سامنے افغانستان کی پوسٹ تباہ، پاک فوج کی جوابی کارروائی سے کرم کے سامنے افغان طالبان کی شپولہ ہلا پوسٹ مکمل تباہ، افغان طالبان کا بھاری جانی اور مالی نقصان، سپن بولدک سیکٹر میں خارجیوں کے اہم ترین عصمت اللہ قرار کیمپ کو تباہ کر دیا گیا، باجوڑ کے سامنے افغان طالبان کی کرزئی پوسٹ مکمل طور پر ملیہ میٹ، جنوبی وزیرستان کے ملحقہ سرحدی علاقوں میں پاک فوج نے متعدد افغان چوکیاں مکمل تباہ کر دیں، یوب، انگور اڈہ اور دیگر افغان طالبان کی پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان بوکھلاہٹ کا شکار، لاشیں اور چیک پوسٹیں چھوڑ کر فرار، افغان طالبان نے متعدد علاقوں سے پسپائی اختیار کر لی، دندان شکن جواب پر خارجی تشکیلیں تتر بتر، افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام، پاکستان کی جانب سے قبضہ کی جانے والی افغان پوسٹ کے اندرونی منظر پر پوسٹ پر افغان یونیفارم اور ہتھیار دیکھے جا سکتے ہیں، قبضہ کی گئی افغان پوسٹوں میں آگ اور تباہی، افغان طالبان نے پاک فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا، پاک فوج کی افغان طالبان کی توپسر پوسٹ پر قبضے کی ویڈیو منظر عام پر۔ افغان فورسز کی انگورہ اڈہ، باجوڑ، کرم، دیر اور چترال میں بلا اشتعال فائرنگ، بارامچہ بلوچستان کے مقامات پر بھی افغان فوجیوں کی شرنگیزی، مقصد خارج کی تشکیلوں کو بارڈر پار کرانا تھا، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سرحد کا بھرپور دفاع کیا، افغان طالبان اور طالبان پوسٹ میں چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے، پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے فرار خارجیوں اور افغان طالبان کو انگیج کیا، افغانستان کی جانب سے جارحیت افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی، اس طرح کا حملہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مجرمانہ اشارہ ہے جو پاکستانی عوام کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے، یہ حملہ اس پیغام کا حصہ ہے جو پاکستان کے دشمن دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی یکجہتی اور دفاعی عزم کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ پاکستان کے رد عمل کو پاک افغان عوام کے درمیان جنگ نہ سمجھا جائے، پاکستان کا جوابی حملہ صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوگا، جارحیت افغان عبوری حکومت، طالبان اور خوارج کی جانب سے مسلط کی گئی، افغان جارحیت بھارتی مالی معاونت سے کی جا رہی ہے، دہشت گرد عناصر پاکستان کے خلاف جنگ کو ہوا دے رہے ہیں، پاکستان کا افغان عوام یا عوامی مقامات کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں، کارروائی افغانستان کے بھارت پرست شرپسند عناصر کے خلاف ہے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغانستان نے بھارت کے پلے بک سے حربہ اپنایا کہ فائرنگ کم اور شور زیادہ، افغانستان کی جانب سے نام نہاد کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ مصنوعی ذہانت اور خود بنائی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی، ڈرامے کا آغاز افغانستان نے کیا تھا، اس پر یاد رکھنے والا سبق پاکستان کرے گا۔
वज़ीर दाखिला की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। बहादुर फोर्सेस ने फौरी मुअस्सर जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कबायली अवाम का अफगान हमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अवाम की जानिब से ऑडियो पैगाम में कहा गया, अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। कहा, वतन का दिफा हम पर फ़र्ज़ है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। बलोच कबाइल का भी पाक फौज के शाना बिशाना अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने का ऐलान। हुकूमत से सरहद पर जाने की इजाज़त देने का मुतालबा। कबायली अवाम असलहे के साथ सड़कों पर आ गए। सऊदी अरब और कतर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा, पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करें। सऊदी अरब का इलाकाई और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए अपने अज़म का भी अदा। पाकिस्तान अफगान सरहदी कशीदगी पर कतरी वज़ारत ख़ारिजा की भी तहम्मुल की अपील। कहा, दोनों ममालिक मसाइल को मुज़ाकरात और सफारती ज़राए से हल करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और दोनों ममालिक की खुशहाली चाहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारत कर रहा है। रिजवान सईद ने कहा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब इस खतरे से बराह रास्त निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अफगान वज़ीर ख़ारिजा का भारत में दिया गया बयान सख्ती से मुस्तरद। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी और कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों की संगीन तौहीन है। दहशत गर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देना भी नाकाबिल कबूल है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ मौसर इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। तर्जुमान की जानिब से मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अमन की बहाली के बाद उनकी वापसी ज़रूरी है। अफगान अवाम को तिब्बी और तालीमी वीज़े देने का सिलसिला जारी रखेंगे। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का मिशन। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में लाएहामल तय करने पर मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला लिमिन गंडापुर का इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक कर दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्तीफ़ा आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन के आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत वज़ीर आला ने सिर्फ इस्तीफ़ा देना है, गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं होती। सलमान अकरम राजा का गवर्नर राज लगाए जाने पर सख्त मज़ाहमत का ऐलान। जुनैद अकबर बोले, सुहेल आफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनाएंगे। वज़ीर आला के इस्तीफ़े का मामला सुलझा नहीं। नए वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल आ गया। KP असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। असम्बली सेक्रेटेरिएट के शेड्यूल के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा होने के फौरी बाद स्क्रूटनी की जाएगी। शाम 5 बजे ही उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के लिए शो ऑफ हैंड से वोटिंग पीर को होगी। PTI ने सुहेल आफरीदी के लिए JUI से हिमायत मांग ली। जुनैद अकबर की सरपरस्ती में PTI वफ्द की JUI मरकज़ आमद ताउन की दरख्वास्त की। सूडान की मगरबी रियासत दारफोर में पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोलाबारी से दर्जनों अफराद हलाक। इमदादी मरकज़ पर ड्रोन हमले में खवातीन और बच्चे भी जाबाहक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई लाशें मलबे तले दबे होने की इत्तला है। मजहबी जमात के एहतजाज पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई अमूर राना सनाउल्लाह से रब्ता। वफाक और पंजाब से एहतजाज का मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मामले को खुश उसलूबी और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ मिल बैठ कर हल करे। मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र व तहम्मुल से काम लें। 3 रोज से बंद मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक खोल दी गई। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। मोटरवे M3 भी लाहौर से ट्रैफिक के लिए ओपन। जुड़वां शहरों को जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद। लाहौर में मुल्तान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस बंद। अफगान तालिबान का पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जो हमला किया गया है उसमें हमारे जवान शहीद हुए और 29 जख्मी जबकि 23 जवान शहीद हुए हैं। ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारिक अजीज। तारिक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? तारिक से रब्ता बहाल करेंगे। गुज़श्ता शब जो अफ़गानिस्तान की जानब से दर अंदाज़ी की कोशिश की गई और अफ़गानिस्तान की दर अंदाज़ी का भरपूर तरीके से जवाब देते हुए पाकिस्तान के 23 जवान शहीद हो गए, धरती माँ पर कुर्बान हो गए और 29 जवान ज़ख्मी हुए हैं। ये अदद व शुमार सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताए गए हैं और दुश्मन से बहादुरी से मुकाबला करते हुए वतन के सपूतों ने ये जानकर नजराना पेश किया है और ISPR का बताना है कि इस झड़प के दौरान, जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए हैं। ये वही जवान हैं जो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत के लिए, अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए जवामर्दी से मुकाबला कर रहे थे दुश्मन का, जिसने बिला इश्तियाल फायरिंग की रात के अंधेरे में, मगर पाक फ़ौज की बहादुरी और जवामर्दी के डट कर मुकाबला किया, भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरहद पर फितनाल खारिज के हिमायतकार अफगान तालिबान की दर्जनों चेक पोस्टों पर कब्जा किया और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। 200 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। इस ऑपरेशन के नतीजे में इंतहाई बड़ी कामयाबी पाक फ़ौज की, जिन्होंने वासिल जहन्नुम कर दिया, जिन्होंने दहशतगर्दों को, वही दहशतगर्द जो पाकिस्तान की ज़मीन पर फितना फैलाते हैं, पाकिस्तान की आवाम, जान और माल को नुकसान पहुंचाते हैं। कई अरसे से हम देख रहे थे कि टेररिज्म बढ़ता जा रहा था और फितना अल खारिज, फितना उल हिंदुस्तान, यही इसमें मुलव्वस पाए जा रहे थे और मुसलसल हमारी फोर्सेस की जानिब से इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे थे। कई खारजों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया था और अब जो ताज़ा तरीन ऑपरेशंस किए गए हैं उसमें 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तालिबान के मुतादिद कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए हैं। को बताएं कि पाकिस्तान के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए, जबकि पाकिस्तानी अफवाज ने सरहद पर 21 दुश्मन पोजीशन पर आर्जी कब्जा किया है। तस्दीक शुदा इतलात के मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान और दहशतगर्द मारे गए। तालिबान के मुतादिद कैंप और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। सिविलियन नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन एहतियाती इकदामात किए गए हैं। ISPR का बताना है